Okay, so just to revise, we are um, in last few lectures we understood what is what if analysis, right? What if analysis करके analysis का type है, वो टाइप और वो एनालिसिस हम देख रहे थे पिछले दो लेक्चर से। तो उसमें मल्टीपल ऑप्शंस है, कुछ अलग अलग तरीके हैं, राइट? सिनेरियो मैनेजर एंड फ्यू मोर थिंग्स एंड सॉल्वर, गोल सेक और ऐसे कई चीजें हैं जो आप डे टू डे यूज में एज अ बिजनेस यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, मतलब एज अ बिजनेस आपको यूज करना है, कुछ सिनेरियो समझना है क्या हो रहा है, और यू वांट टू कंपेयर डिफरेंट सिनेरियोज, तो अलग अलग ऑप्शंस जो अवेलेबल है एक्सेल में वो हमने एक्सप्लोर किया है, राइट? एंड विद दिस ओनली आई आस्क्ड यू टू डू लाइक ट्राई इट ऑन योर ओन। जो डेटा दिया है उस पे ऊपर आप एक बार ट्राई कीजिए। ओके, सो विद दैट देन व्हाट वी आर कम टू नाउ इज जो हमारा एक आखिरी स्टेप है। ओके, so the complete process of data analytics which was data understanding, right? जिसमें हमने data understanding में we understood why each and every column exists, मतलब हर एक कॉलम क्यों आपके डेटा में अवेलेबल है और उसका पर्पस क्या है, why that column exists in your data। उसी में हमने हायरार्किकल डेटा के बारे में भी समझा। ओके, so these things come under a data understanding. Then data formatting में, so we try to convert data type as per the business requirement or as per the general business transactions. For example, if it is a sales, then a value should be in dollar. Profit है तो डॉलर में होना चाहिए, right? If it is a date or date of birth, date of join, then we should convert it into a date format। Okay, और regular textual data है तो you can use a text और जनरल, ये भी आप यूज कर सकते हो, नहीं तो जनरली टेक्स्ट, ये ऑप्शन बहुत बार यूज होता है, टेक्स्ट। ओके, होप यू कैन सी। apart from this data understanding, data formatting, then we touched upon क्विक इंसाइट। क्विक इंसाइट्स के लिए हमने थर्ड स्टेप, विच इज थर्ड स्टेप, बट बिफोर मूविंग, एक डेटा फॉर्मेटिंग में आखिरी स्टेप था, वी कन्वर्टेड इंटायर डेटा इनटू अ टेबुलर फॉर्मेट। एक टेबुलर फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट किया था, राइट? इंसर्ट टेबल, and after that we used a quick insights method such as sort, filter or conditional formatting। okay, right? ये हो गया step 3, where you found some insights saying total sales is this, total profit is this, right? uh, this market, this product has very highest margin, like this जो आपको दिख रहा है। then conditional formatting, ये ऑप्शन हमने यूज किया था टू आइडेंटिफाई टॉप 5, टॉप 10, टॉप 5 मार्केट्स, प्रोडक्ट्स, राइट? then top 10 products, market, subcategory, category, all these things come under data, sorry, quick insight, which is step 3। Then step 4 include data consolidation। In data consolidation हमने primarily we used lookup functions। lookup functions हमने primarily use किया था। and there are three lookup function: vlookup, hlookup and xlookup, right? तो vlookup पे हमने complete 2 दिन spend किया है, which is regular vlookup, then vlookup with optional जो भी optional parameters है उसके साथ, logical vlookup, vlookup on the same file, different sheet, hmm? And similarly hlookup also follows all the types or variations of vlookup। then third option was the x lookup। third option क्या था? x lookup। x मतलब क्रॉस लुकअप था, राइट? हमें
इंडेक्स वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं है, सिंपली दो कॉलम सिलेक्ट करने हैं। पहला जिस कॉलम में लुकअप वैल्यू है, एंड देन नेक्स्ट कॉलम जो कॉलम हमें चाहिए, डेटा हमें चाहिए जो कॉलम में से, राइट। देन डेटा कंसोलिडेशन के बाद डेटा समराइजेशन वाज द नेक्स्ट स्टेप। तो इसमें क्या ऑप्शंस थे इन द डेटा समराइजेशन? यू यूज अ पिवट टेबल, राइट। पिवट टेबल यूज करके हमने मल्टीपल क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व किए। एंड सिमिलरली वी यूज्ड अ डेटा विजुअलाइजेशन लाइक पिवट चार्ट। पिवट चार्ट का भी यूज किया which creates a visualization on interactive charts based on the data. Then data visualization, then we slightly diverted तो हम real use case based scenarios such as what if analysis, goal seek, solver, data table, ऐसे अलग अलग options which are not available easily on Excel, so हमने ये एक्सप्लोर किया, which is वन टाइम रिक्वायरमेंट हो सकता है और एज एंड व्हेन नीडेड आप उसे यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? होप एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे हमने ये प्रोग्रेस किया फ्रॉम कंप्लीटेड डेटा एनालिटिक्स का जो जर्नी था 7-8 स्टेप का, वो हमने यहाँ तक कंप्लीट किए हैं। बट ओनली थिंग लास्ट स्टेप जो ऑटोमेशन का है, राइट, ऑटोमेट, यू ऑटोमेट सर्टन थिंग्स, तो ये ऑटोमेशन का पार्ट आज हम देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। मे बी वन थिंग वुड लाइक टू हियर इज ऑटोमेशन जनरली किया जाता है जब आप कुछ काम रिपीटेटिव हो रहा है। ओके, मतलब हर रोज और हर 15 दिन में, हर महीने में सेम टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो, देन जनरली people try to automate that task. Okay, sir. Okay, so once that is clear, so let's understand कि automation कैसे किया जाता है। पहले ऑटोमेशन सीखने से पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता होना इम्पोर्टेंट है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी को पता है क्या एक्सेल कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना है? अभी आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली ये यूज कर रहे हो ना, क्लिक करते हो कुछ, क्लिक करते हो तो कुछ चेंज होता है, बट इसके पीछे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा है, प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम की वजह से आप ये सब कुछ कर पाते हो, क्लिक वगैरह। तो ये क्यों होता है और कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करते हैं, किसी को आइडिया है? Java. ओके, एनी अदर गेस? जावा, डेफिनेटली नो जावा। Power Query. पावर क्वेरी, ओके, एनी अदर? पावर क्वेरी इज वन ऑफ द फीचर, एक फीचर है जो आप पावर बीआई में बहुत यूज करोगे। सेम फीचर आजकल एक्सेल में भी आ विजुअल रहा है। बेसिक हाँ, Sir, विजुअल बेसिक VBA. यस, वीबीए, राइट, विजुअल विजुअल सर बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन। Yes. आई डोंट नो आप यस लोगों सर ने सुना है कि नहीं, बट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कॉल्ड वीबीए, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। सर चैट ये बॉक्स में एक बार बता सकते हैं सर जावास्क्रिप्ट से भी यूज होता है ना? नहीं, एक्सेल क्रिएट करने के लिए, एक्सेल का जो ये प्रोग्रामिंग है अंदर का, इसके लिए आप इंटीग्रेट किसी के साथ भी कर सकते हो आगे। हाँ बोलिए, somebody mentioned about chatbot, chat box, क्या है chat box में? नहीं, चैट बॉक्स एक बार पुट पुट कर लियो कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नाम पूरा। VBA, Visual Basic for, okay, is it the first time you guys are listening? मतलब ओके ठीक है, VBA विजुअल, मैं दिखाई देता हूँ आपको, टेंशन बेसिक नहीं है। एप्लीकेशन विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, डोंट वरी। ये देखिए, ये है। नाउ वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखना है कहाँ पे है, डेवलपर टैब पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए विजुअल बेसिक दिख रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए एक नया विंडो ओपन होता है, इसमें आप प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह कर सकते हो एक्सेल रिलेटेड। ओके, ये अभी ओपन नहीं हुआ है, क्लिक हो गया। तो ये विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ता है
इफ यू वांट टू ऑटोमेट एक्सेल टास्क, एक्सेल के टास्क जो ऑटोमेट करते हैं। एंड ये नॉट ओनली एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्रोडक्ट है ऑफिस, उसमें ये यूज होता है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सब में VBA रहता है। और जो हम अभी करने वाले वो सब में मोस्टली वर्क होता है। तो ऑटोमेशन करना है तो प्रोग्राम लिखना पड़ेगा आपको। तो प्रोग्राम लिखना है तो आपको प्रोग्रामिंग आना, मतलब यू शुड लर्न, सीखना पड़ेगा आपको पहले, राइट? विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। तो क्या अभी इसके लिए एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है? क्या लगता है आपको, है क्या उतना आपको, मतलब वांट टू लर्न, इतना इंटरेस्ट है? यस सर। ओके, गुड। बट इट्स गुड, आपको इंटरेस्ट है, आप सीख सकते हैं, बट सबको ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा टास्क है, उसे ऑटोमेट करना है, तो इसके लिए हमें पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना मुश्किल है। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल हैज गिवन अ स्पेशल फीचर। वो फीचर क्या है? वो ऑप्शन आप ऑन करोगे तो आपका पूरा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। माइक्रो। यस, सो दैट ऑप्शन और दैट फीचर इज कॉल्ड अ मैक्रो। ये देखिए, दिख रहा है यहाँ पे मैक्रो, मैक्रोज करके है। तो ये ऑप्शन क्या करता है, आप जैसे रेगुलर एक्सेल पे काम करते हो वही काम करना है। ओनली थिंग इज इसे इनेबल करना है। काम करने से पहले एक बार इनेबल किया, पूरा काम करो एंड देन क्लोज करो। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको आपका माइक्रोसॉफ्ट और विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन का जो कोड है, वो प्रोग्राम और वो कोड ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, क्रिएट हो जाएगा लिटरली। हम देख भी सकते हैं, बाय द वे, वो जो प्रोग्राम और कोड है वो हम देख भी सकते हैं ऐसे। ओके, क्लियर? सबको समझ में आया कि व्हाट एक्चुअली वी वांट टू डू इट, और इसे कैसे यूज करना है हम देखते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये हेलो डेवलपर जॉब। यस। सर, मेरे एक्सेल में डेवलपर ऑप्शन नहीं है। हाँ, आ रहा हूँ मैं उधर ही। ओके। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, कैन एनीवन कंफर्म कि आपके इसमें डेवलपर ऑप्शन दिख रहा है? हाँ? No, sir. दिख रहा है। ओके, यस सर। ओह दैट्स गुड, आपके इसमें दिख रहा है तो अच्छा है। जिनके इसमें नहीं दिख रहा है, ये आपको इनेबल करना पड़ता है। दिस इज नॉट बाय डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट नहीं दिखता। आपको क्या करना पड़ता है? ये ऑन और इनेबल करना पड़ता है। ओके, कैसे करना है Okay. इनेबल, क्या है ये ऑप्शन? लेट्स सी। फाइल पे क्लिक कीजिए, फाइल, देन मोर, ऑप्शंस एंड कस्टमाइज रिबिन। दिख रहा है यहाँ पे कस्टमाइज रिबिन, ये देखिए दिख रहा है। इन द कस्टमाइज रिबिन एक बार आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन गो टू दिस ऑप्शन। ये देखिए डेवलपर ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, डेवलपर ऑप्शन। यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है, ये क्या हो जाएगा? इनेबल हो जाएगा। वंस यू आर डन, ये इनेबल Done. किया, तो नीचे आके आपको ओके पे प्रेस करना है। यस, हो गया सर। ओके, क्लिक ऑन दिस, आपको ये डेवलपर ऑप्शन दिखेगा। इतने स्टेप्स क्यों फॉलो करने पड़ते हैं? बिकॉज दिस इज नॉट फॉर डे टू डे यूजर। ये डे टू डे जो एक्सेल यूज करते हैं उनके लिए नहीं है। दिस इज फॉर एडवांस यूजर, जिन्हें ऑटोमेशन करना है और कुछ एडवांस ऑप्शंस एक्सप्लोर करना है, तो these people will use this function. Clear? Okay. So let's see, we'll start with our first example, how to create a macro. तो requirement समझिए पहले। तो requirement ये है, I will create a new sheet, एक नया sheet create होगा, okay, like sheet 1 यहाँ पे से, और first cell में मैं लिखूंगा my first macro, okay, ऐसा लिखना है। तो ये जो प्रोसेस था, नया शीट क्रिएट करना और लिखना, ये मुझे ऑटोमेट करना है। मतलब हर बार मैं कुछ
प्रोग्राम और कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, उस ऑप्शन के बाद ऐसे होना चाहिए, एक नया शीट और ये नया टेक्स्ट आना चाहिए यहाँ पे। तो ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। लेट्स सी, लेट मी डिलीट दिस। ये जो प्रोसेस फॉलो करना है उससे पहले क्या करना है, डेवलपर ऑप्शंस पे क्लिक करना है। ओके, डेवलपर ऑप्शंस, देन सिलेक्ट रिकॉर्ड मैक्रो। यहाँ पे दिख रहा है रिकॉर्ड मैक्रो, ये देखिए ये ऑप्शन मैनेज करने के लिए है मैक्रोज। सो दिस इज द रिकॉर्ड मैक्रो। तो क्लिक कीजिए, क्लिक करते आपको ऑप्शन आएंगे, क्या है, नाम देना है आपके मैक्रो को और आपके प्रोग्राम को, माय फर्स्ट मैक्रो। ओके, शॉर्टकट सेट करोगे तो शॉर्टकट भी सेट कर सकते हो। ओके, यू कैन सेट एनीथिंग। आई विल सेट कंट्रोल टी सेट करता हूँ। ओके, then there is 3 more options such as this workbook, next workbook, new workbook। मतलब ये जो प्रोग्राम बनेगा माय फर्स्ट मैक्रो, ये कहाँ पे बनेगा, इस वर्कबुक में बनेगा, मतलब दिस नया वर्कबुक में बनेगा, मतलब इसके बाद जो वर्कबुक आप ओपन करोगे उसमें बनेगा, या आपके पर्सनल एक मैक्रो वर्कबुक है उसमें बनेगा। तो पर्सनल वर्कबुक और जो पर्सनल मैक्रो वर्कबुक है, इसका एडवांटेज क्या है कि ये जो प्रोग्राम है, यहाँ से आगे आप जितने भी एक्सेल फाइल ओपन करोगे उस फाइल में ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब ये माय फर्स्ट मैक्रो का जो कोड है वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा नए फाइल में। तो उसे पर्सनल वर्कबुक बोलते हैं। ओके, दिस में करोगे तो इसी में वो प्रोग्राम सेव होगा, नए फाइल में सेव नहीं होगा। तो टाइम बीइंग आई विल सेव इट इन माय दिस वर्कबुक ओनली। मतलब अभी के लिए मुझे दिस वर्कबुक चाहिए। आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी आपको चाहिए वो सेव कर सकते हैं। ओके ओके, सो नेक्स्ट वन, इफ आई क्रिएट, आपको डिस्क्रिप्शन देना है, दिस इज जस्ट टेस्ट मैक्रो। आपको डिस्क्रिप्शन मतलब क्यों क्रिएट किया है ये प्रोग्राम, इसके बारे में आप कुछ यहाँ पे लिख सकते हो। प्रेस ओके, हो गया। तो हमें सिर्फ यहाँ पे जो ये देखिए स्टॉप का भी ऑप्शन आ रहा है एक बार स्टार्ट के बाद। और हम क्या करेंगे, जो हमें प्रोसेस फॉलो करना है और हमें स्टेप्स फॉलो करना है वो करेंगे। क्या स्टेप्स थे, क्लिक ऑन न्यू फाइल, सॉरी न्यू शीट, हो गया। सिलेक्ट फर्स्ट सेल, हो गया। टाइप माय फर्स्ट मैक्रो, हो गया। प्रेस एंटर, इतना प्रोग्राम हो गया। देन आई विल क्लिक ऑन स्टॉप। ओके, हो गया स्टॉप। चेक करना है आपको आपका जो प्रोग्राम आपने रिकॉर्ड किया था वो अवेलेबल है कि नहीं। तो मैक्रोज पे क्लिक कीजिए, डेवलपर्स टैब में मैक्रोज। ये देखिए आपका प्रोग्राम दिख रहा है आपको यहाँ पे, यही था ना आपका। यही था। Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक बार ये प्रोग्राम रन हो गया, देन यू कैन स्टार्ट। ये देखिए आपको प्रोग्राम देखना है तो वो भी मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे जो एडिट दिख रहा है, एडिट, इस पे क्लिक करोगे तो आपको प्रोग्राम भी दिखेगा। देखिए, और ये ओपन किस में होता है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। कौन से फाइल में है, डे 7, राइट। प्रोग्राम क्या है, ये देखिए माय फर्स्ट मैक्रो, राइट। और उसका ये कोडिंग है, कीबोर्ड शॉर्टकट है और ये कोड है, सिंपल कोड है। दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है, कुछ रेंज ऐसा कुछ किया है, फॉर्मूला R1 ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पे, राइट। ये हमारा विजुअल बेसिक का एक प्रोग्राम हो गया। देखिए, सो यू कैन नॉट राइट द प्रोग्राम, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना, नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट हैज गिवन दिस फंक्शनैलिटी। सो हाउ टू क्लोज दिस विंडो, एक विंडो ये यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो आपका क्लोज हो जाएगा। यस, ओके, हो गया। लेट्स रन द प्रोग्राम। हमारा प्रोग्राम रन करके देखते हैं कैसे दिखता है। माय फर्स्ट मैक्रो रन, क्लिक। ये देखिए नया फाइल ओपन हो रहा है नीचे, शीट 3 ओपन हो गया है क्या इधर।
अभी शीट 4 होगा, वापस रन करता हूँ तो ये देखिए शीट 4 हो गया। हमने एक शॉर्टकट भी सेट किया था ना, कंट्रोल टी, वो रन कीजिए, देखिए कंट्रोल टी 5 हो गया, कंट्रोल टी 6 हो गया, कंट्रोल टी 7 हो गया, कंट्रोल टी 8 हो गया, राइट। लाइक दिस आप ऑटोमेटिकली ये सारे शीट्स क्रिएट कर सकते हो। ओके, अंडरस्टूड कैसे करना है? लेट मी डिलीट दिस शीट्स। ओके, ठीक है। सो क्लियर कैसे ये मैक्रो वर्क होता है और आपको क्या करना है, अंडरस्टूड? गुड। सो चलो अभी थोड़ा हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, प्रैक्टिकल सिनेरियो। यस, किसी को कुछ डाउट है? somebody want to say something? Okay, let's now understand some practical use cases. Suppose आपको as analyst, आप एक HR related कंपनी में जितने भी हायरिंग होते हैं, राइट, नए एम्प्लॉय ज्वाइन होते हैं, तो वो एम्प्लॉयज उनका आपको क्या करना है? यू वांट टू डेटा क्लीन करके देना है एचआर को, मतलब उनके नाम अच्छे प्रॉपर करना है, सरनेम प्रॉपर सेट करना है, देन यू नीड टू सेट समथिंग विद डेट, कुछ मिसमैच हो रहा है तो डेट रिलेटेड आप कर सकते हो। ओके, डेट, देन यू कैन मेंशन अबाउट, मतलब जो भी हम डेटा अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेटिंग वगैरह करते थे वो स्टेप्स आप क्या कर सकते हो? मतलब यहाँ से ऑटोमेट कर सकते हो। ओके, तो ऑटोमेट करने से क्या होगा कि एक क्लिक पे और एक आप जब भी रन करना चाहते हो प्रोग्राम, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रन होगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये कैसे करना है। आई विल गिव यू सम सैम्पल डेटा, एक सैम्पल डेटा मैं आपको दे देता हूँ। लेट मी क्लोज दिस। ये देखिए एक सैम्पल डेटा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम राइट, डिपार्टमेंट वगैरह है, और हमें क्या करना है? ये देखिए सीटी से इसका फॉर्मेटिंग, ये डेट, ज्वाइनिंग डेट, इस सब का डेटा फॉर्मेट करके हमें दिखाना है। सो लेट्स डू इट विद द प्रोग्राम, करेंगे मैक्रोज यूज करके, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड। ओके, जब भी आप मैक्रो यूज करते हो एक एडवाइस रहता है कि बैकअप, जो मास्टर डेटा रहेगा उसका बैकअप निकाल के रखिए कहीं, तो उससे क्या होगा कि आपका जो डेटा है ओरिजिनल डेटा वो चेंज नहीं होगा। ओके, सो डेवलपर रिकॉर्ड मैक्रो, और मैं यहाँ पे देता हूँ डेटा क्लीनिंग, डेटा अंडरस्कोर क्लीनिंग, और यहाँ पे शॉर्टकट भी दे दो, वाई दे रहा हूँ मैं, दिस इज क्लीनिंग मैक्रो। ओके, प्रेस ओके, हो गया। ठीक है, अभी क्या करना है, हमें ये सिलेक्ट करना है। ओके, पूरा डेटा सिलेक्ट हुआ, कंट्रोल सी कॉपी, एक नए शीट में मैं पेस्ट करता हूँ बैकअप के लिए, एंड देन क्विकली आई कैन डू एनालिसिस। एनालिसिस मतलब अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग करना है, तो अभी मैं एग्जांपल फॉर्मेटिंग का ही देता हूँ आपको। तो क्विकली आप एक काम कर सकते हो, पहले तो ये तीन क्या है, टेक्स्ट है, X. तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स टेक्स्ट कर दो, देन दिस आई विल कीप इट एज जनरल, और ये टोटल एक्सपीरियंस नंबर है तो सिलेक्ट दिस एज अ नंबर, राइट। ऐसे ही करते हैं ना डेटा फॉर्मेटिंग। Yes, sir. हाँ, डेसिमल पॉइंट 0, प्रेस ओके, देन जेंडर टेक्स्ट, General तो होम में जाके यहाँ से भी आप कर सकते हो इफ यू वांट। ये देखिए टेक्स्ट, सीटीसी, currency. सीटीसी करेंसी में करेंसी। रहता है, सो यहाँ पे रेडीमेड है, शायद अकाउंटिंग है ये, करेंसी यहाँ पे है, राइट, करेंसी आ गया।
Date of joining, date of birth, डेट. डेट फॉर्मेट से आई विल यूज अ शॉर्टकट. यहाँ पे है लॉन्ग शॉर्ट डेट, ये देखिए, राइट. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. इफ यू वांट ये पूरा सिलेक्ट करके एक बार आप इसको पूरा लाइक बॉर्डर वगैरह डाल दीजिए. दैट्स इट. एंड लाइक दिस. ओके, क्लियर. सो ऐसा कुछ आपने कर दिया है पूरा. देन स्टॉप द रिकॉर्डिंग. इतना हमारा स्टेप हो गया. नाउ आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग. डेवलपर टैब स्टॉप. ओके, गुड. लेट मी कम ऑन मास्टर डेटा. आई विल शो यू कि इतना इसका कितना बड़ा प्रोग्राम बनता है. डेवलपर्स टैब, मैक्रोस, माई क्लीनिंग मैक्रो, सॉरी क्लीनिंग मैक्रो एडिट. ये देखिए, आपने जो भी स्टेप्स किए हैं वो प्रोग्रामेटिकली यहाँ पे प्रिंट हुए हैं सारे, राइट. कौन सा शीट सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट कैसे करना है, देखिए. नंबर फॉर्मेट किया आपने, डेट फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट, लाइक ऐसे. width column, with end, something something, this, right. ऐसे ये प्रोग्राम आपने बनाया है. तो मान लीजिए 1 महीना हो गया. नेक्स्ट मंथ में आपको सेम लिस्ट वापस एचआर ने भेजा और बोला कि इसमें मुझे डेटा क्लीनिंग करके दो, डेटा क्लीनिंग, डेटा फॉर्मेटिंग करके दो. तो आपको क्या करना है, सिंपल, कुछ नहीं. ये मास्टर डेटा लेना है आपको, डेवलपर्स टैब, मैक्रोज, और ये जो डेटा क्लीनिंग है उसे सिलेक्ट कीजिए एंड रन कीजिए. ये देखिए, शीट 10 क्रिएट हो गया विथ ऑल द सेटिंग्स, राइट. प्रॉपर फॉर्मेट वगैरह हुआ है. आपको चाहिए तो कंट्रोल वाई था ना, ये देखिए कंट्रोल वाई क्रिएट हो गया, शीट 11 क्रिएट हो गया, पूरा फॉर्मेट हो गया ऐसे, राइट. क्लियर. सो ऐसे आप डेटा फॉर्मेट वगैरह भी कर सकते हो. सो ऑटोमेशन समझ में आया सबको कि कैसे ऑटोमेट करना है आप टास्क. कुछ नहीं, मैक्रो स्टार्ट करना है, बाद में जो रिकॉर्डिंग हो करना है वो करना है. दैट्स इट. आपको जो काम करना है वो रिकॉर्ड करना है, देन स्टॉप कर देना है. ओके, ऑनलाइन अंडरस्टूड एवरीवन कैसे करते हैं ये? Yes, Yes, sir. sir. ओके, गुड. तो आपका तो काम हो गया. 1-2 दिन जो काम लगने वाला था वो विद इन 1 क्लिक कर सकते आप, है ना. नाउ सपोज नेक्स्ट मंथ में कम लोग ज्वाइन हुए. ऐसा नहीं कि हर महीने बहुत लोग. बाय द वे, टीसीएस, इन्फोसिस में वगैरह महीने में 1000 2 हजार लोग ज्वाइन होते हैं, राइट. तो उस केस में ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लीनिंग वगैरह. ठीक है, 1 महीने में कम लोग ज्वाइन हो गए, राइट, लाइक दिस, इतने ही लोग ज्वाइन हो गए. तो मुझे क्लीनिंग करना है, तो सिंपल है मेरे पास ऑप्शन. क्या, मेरा तो रेडी है प्रोग्राम. कंट्रोल वाई, ये देखिए हो गया रन. ऐसे थोड़े ये ब्लैंक ऐसे भी ड्रॉ आ ही रहे हैं, बट जो भी डेटा दिया था उसना तो सॉल्व हो गया, प्रॉपर फॉर्मेटेड हो गया, राइट. तो एनीवन नोज कि ये क्या हो रहा है इधर, क्यों ब्लैंक आ रहा है, और ये ऐसे ही क्यों एरो आ रहा है, और ये बॉर्डर क्यों हुआ है यहाँ पे. बिकॉज आपने प्रीवियस डेटा में उसको डिलीट किया सर. नहीं, बट एक्चुअली मैंने डिलीट किया है, बट एज पर रिक्वायरमेंट मुझे इतने ही लोग आए हैं ना अगले महीने के लिए. सर एक्चुअली वो फॉर्मेटिंग जो प्रोसेस फॉलो किया था वो कोड में सेव है, तो वो जो है मैक्रो ने फॉलो किया है वहाँ पे, इसलिए फॉर्मेटिंग टेबल वगैरह सब आया है क्योंकि रिकॉर्ड हुआ है ना वो सब कोड में, इसीलिए. यस, क्योंकि जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा था उस टाइम कितने रिकॉर्ड थे, इतने, राइट. तो इसीलिए वो उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करना है, तो इसलिए उसने जितने थे उतने ही रिकॉर्ड यहाँ पे दिए हैं. ओके, चलो लेट्स सी नेक्स्ट टाइम में. अभी 20 तक था उधर जब मैं स्टार्ट हमने रिकॉर्ड किया था. अभी नेक्स्ट मंथ 25 लोग ज्वाइन होते हैं. लेट्स सी लाइक दिस. ओके, कॉपी पेस्ट पेस्ट. हाँ, ये देखिए अभी 24 लोगों ने ज्वाइन किया है सुरेश तक. ओके, 24. नाउ एक जो भी नेक्स्ट मंथ है, अगेन आई विल यूज द सेम डेवलपर्स टैब, गो टू मैक्रोज, क्लिक ऑन रन. अरे उसने तो उड़ा दिया, सुरेश के सारे 3-4 रिकॉर्ड डिलीट कर दिया.
सिर्फ दीपक तक ही रख दिया है यहाँ पे, देखिए। सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहा है इसकी वजह से ना। यस, बट ये तो किसी काम का नहीं है। ऐसे चाहिए तो हर बार सेम रिकॉर्ड आने चाहिए। कॉलम तो ठीक है सेम ही चाहिए, बट रोज भी सेम चाहिए, ऐसे हो रहा है। कैन वी डू समथिंग अबाउट इट? यस, ये जो अभी हो रहा है इसको बोलते हैं स्टैटिक रेफरेंस। एक रेफरेंस ले रहा है क्या? आप जब प्रोग्रामिंग किया था आपने .20 तक आपने सिलेक्ट किया था, ये हो गया स्टैटिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग करना चाहिए। डायनामिक मतलब जितने इसमें रिकॉर्ड है, जितने भी रिकॉर्ड है 10 20 50 100 उतने रिकॉर्ड सेव होने चाहिए, ना कि स्टैटिकली वो सिलेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए जनरली क्या किया जाता है, शॉर्टकट यूज किया जाता है। ये देखिए मैं क्या कर रहा था, क्लिक करके ऐसे नीचे ड्रैग करके सिलेक्ट कर रहा था जितना डेटा है उतना। ऐसे नहीं करना है, हमें क्या करना है, क्लिक शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो देन शिफ्ट कंट्रोल राइट। जितना भी डेटा रहे वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा। ओके, तो लेट्स सी, मैं करके दिखाता हूँ डायनामिकली सिलेक्शन एंड देन मे बी वी कैन सी। तो once again डेवलपर ऑप्शन, रिकॉर्ड मैक्रो, डेटा क्लीनिंग 2 कर देता हूँ और कंट्रोल टी यू कर देता हूँ। ओके, दिस वर्कबुक अपडेटेड डेटा क्लीनिंग, राइट, प्रेस ओके। इस बार मैं थोड़ा डायनामिक सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए, क्लिक शिफ्ट कंट्रोल डाउन शिफ्ट कंट्रोल राइट हो गया, देन कंट्रोल सी कॉपी और नए शीट में पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी हो गया पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे भी क्या सिलेक्ट करना है, शिफ्ट कंट्रोल डाउन। ओके, इसको फॉर्मेट करके लो ऐसे, होम में जाके टेक्स्ट, राइट, लाइक दिस। झिरो तक आपण जाणार नाही. हाँ, A to C अपन टेक्स्ट लेंगे यस आता. यस, बट ए टू सी सिलेक्ट कैसे करोगे आप? कंट्रोल डायनामिक सिलेक्शन चाहिए, डायनामिक। शिफ्ट ऐसे कर सकते हो आप, वन बाय वन शिफ्ट करके आगे जाइए, देन कंट्रोल डाउन, 3 हो गया, फिर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स टेक्स्ट कर दो। अरे ओके, गॉट इट। ये जनरल है, मैं क्विकली और एक दो दिखा देता हूँ आपको। कंट्रोल, ये देखिए ये दोनों, ये हो गया, राइट क्लिक डेट कर सकते हो आप, फॉर्मेट सेल्स डेट। अरे हो गया डेट, देन टाइटल शिफ्ट कंट्रोल, ये इसको येलो कलर था, एंड शिफ्ट कंट्रोल डाउन और एक बॉर्डर था ऐसे, राइट, लाइक दिस। तो ये हो गया पूरा, मैंने डायनामिकली सिलेक्ट किया है, मैन्युअली कुछ भी नहीं। शिफ्ट कंट्रोल डाउन शिफ्ट करके आगे जाके आप सिलेक्ट कर सकते। ओके, नाउ आई विल स्टॉप दिस। ओके, डेवलपर ऑप्शन स्टॉप। ओके, लेट मी कम बैक टू मास्टर डेटा। ये मास्टर डेटा है, राइट, 24 लोग हैं सुरेश तक। लेट्स सी क्या होता है। मैक्रोज पुराने सारे में आपको चाहिए तो आई कैन रिमूव और एल्स वी कैन रिमूव इट लेटर, व्हाटएवर। सो डेवलपर ऑप्शन, मैक्रोज, डेटा क्लीनिंग 2 एंड देन रन। ये देखिए हो गया, आ रहा है पूरा सूरज तक आ रहा है। ये तो पहले भी आता था। लेट्स ऐड सम डेटा, कुछ डेटा ऐड करते हैं। देखिए कॉपी, सपोज नेक्स्ट मंथ में और 3 लोग ज्वाइन हो गए, टोटल 27 लोग आ गए, तो इसका डेटा क्लीनिंग करना है। कैसे? डेवलपर ऑप्शन, मैक्रोज, डेटा क्लीनिंग 2, रन। ये देखिए आ गया पूरा टोटल 27 तक। ये ऑटोमेटेड पूरा हो जाएगा, कुछ मैन्युअल इंटरवेंशन नहीं है। मान लीजिए कम लोग आ गए, चलिए
13 लोग ही तक आ गए, सिर्फ 13 पीपल, राइट? तो अगेन नॉट एन इशू, डेवलपर टैब, मैक्रोज, डेटा क्लीनिंग 2 एंड रन। उतना ही क्लियर। सो है ना पावरफुल, इजंट इट अ पावरफुल ऑप्शन? मतलब आप मोस्टली ऑटोमेट कर सकते हैं चीजें। ऑनलाइन समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। यूजफुल इट इज। तो आप करोगे ना ऑटोमेट इससे? यस डोंट सर। डू डायरेक्टली, मतलब पहले सीखिए काम, फिर ऑटोमेट करना है। नहीं तो जॉब शुरू हो गया, पहले दिन से ही ऑटोमेशन के ऊपर काम शुरू, है ना? एक क्लिक में कैसे कन्वर्ट करना है। पहले रेगुलर काम सीख लीजिए एंड देन यू कैन ऑटोमेट सर्टेन थिंग्स। ऐसा नहीं कि कंप्लीट आप ऑटोमेशन कर सकते हैं, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है। क्योंकि वीबीए क्या करता है, कोड क्रिएट करता है, बट आप कुछ कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लो बना रहे हो, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वगैरह है, तो थोड़ा बार आगे पीछे हो जाता है इसका भी। तो आपको पूरा फुल फ्लेज बनना है तो वीबीए डेवलपर बनिए डायरेक्ट, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन का डेवलपर। यू कैन प्रोग्रामेटिकली क्रिएट ऑल दीज थिंग्स, सिलेक्शन, आगे वो चेंज करना, कन्वर्ट करना, ऑल दोज थिंग्स। ओके, अंडरस्टूड, ओके गुड। So good then. So with this, maybe can we say we have completed almost all the 7-8 steps? Okay. अब हेलो यहाँ से आगे जो, यस, हाँ, सर, एक बार वी लुकअप का एक बार एक्सप्लेन कर दो ना फिर से। ओके। एक्चुअली में था मैं उस दिन लेक्चर में, बट बीमार था तो थोड़ा कंसंट्रेट नहीं कर पाया। ओके, वी यस। लुकअप का, हाँ। लेट्स सी एक वी लुकअप का एग्जांपल देखते हैं। ओके, सॉरी, नॉट दिस वन। ओके, वी लुकअप, राइट? हाँ, यहाँ पे वी लुकअप डेटा देखिए। सो वी लुकअप जनरली, फॉर एग्जांपल हमने एक मोबाइल का, हमारा जो मोबाइल है, टेलीफोन और सॉरी एंड्रॉइड, उसके एक एग्जांपल से सीखा था, राइट? मतलब कॉन्टैक्ट्स ऐप में क्या है, आपने कॉन्टैक्ट नंबर सेव किया है, आपके फ्रेंड का नाम, उसका मोबाइल नंबर, राइट? और आपको क्या पता है, उसका नाम। सो व्हाट वी डू इज जनरली वी सर्च नेम, मतलब उनका नाम डायरेक्टली टाइप करते हैं, अमित, आकाश, और हमें क्या मिलता है, फोन नंबर, और उस फोन नंबर को क्लिक करके हम कॉल करते हैं, राइट? सो दिस इज हाउ वी यूज, मतलब टेलीफोन में जो कॉन्टैक्ट है वो यूज करते हैं। यहाँ पे जो अंडरलाइन कंसेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज नथिंग बट अ वी लुकअप। कैसे? क्योंकि वी लुकअप के लिए एक इंपॉर्टेंट है कॉल्ड लुकअप फंक्शन, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब कॉमन वैल्यू। सपोज ये मेरा सोर्स है, राइट? ये सोर्स डेटा है और ये एग्जांपल 1 है। इन दोनों में क्या कॉमन है? एम्प्लॉय आईडी कॉमन है, राइट? एम्प्लॉय आईडी दिख रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ यस। पे भी है। तो ये क्या हो गया, लुकअप वैल्यू, इसको बोलते हैं लुकअप वैल्यू। ओके, क्योंकि ये दोनों कॉमन है। हमारे केस में जो फोन लगाते हैं उस केस में क्या, मुझे नाम पता है, कॉन्टैक्ट ऐप में भी नेम स्टोर्ड है, तो क्या हो गया, लुकअप वैल्यू। ओके, एक बार लुकअप वैल्यू सेट हो गया आपका, फिर उसके बाद आता है सोर्स टेबल। सोर्स मतलब जहाँ पे इंफॉर्मेशन है उसे बोलते हैं सोर्स टेबल। तो हमारे केस में क्या है, टेबल 1 जो है ये सोर्स टेबल है, क्योंकि इसमें सारा डेटा अवेलेबल है। कौन सा? एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सपोज सैलरी, ये डेटा, राइट? ये दोनों डेटा अवेलेबल है। सो आई विल, दिस इज माय source table. So let's write a formula. Select this, insert, sorry, formula, insert function, and VLOOKUP. Okay,
वी लुकअप आ गया। देन लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू जैसे हमने अभी डिस्कस किया विच इज कॉल्ड कॉमन, तो E101 कॉमन है दोनों में, तो आई विल राइट दैट। टेबल अरे, टेबल अरे इज नथिंग बट अ कंप्लीट टेबल, ये जो पूरा टेबल है, राइट, एम्प्लॉय आईडी का जो टेबल है, दिस टेबल। आपको हेडिंग सिलेक्ट करना है तो कर सकते हैं, नहीं किया तो भी चलेगा, नॉट एन इशू। हो गया, क्योंकि ये इसमें पूरा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है इसीलिए। देन कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर इज नथिंग बट लाइक दिस। ये देखिए, ये हमेशा एक नंबर रहता है, जो कॉमन रहता है उसे एक नंबर देना पड़ता है। तो एक, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अभी मुझे क्या चाहिए, सैलरी, तो सैलरी का इंडेक्स क्या है, 4, तो आई विल राइट अ 4 हियर। 4 लिखा है, प्रेस ओके। ओके, सॉरी क्या हो गया इसको, ओके, दैट इज बिट वियर्ड। A2 @ नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, lookup table, let me select the data only। हाँ, ओके, हेडिंग, हेडिंग के हमने एक्चुअली ये टेबल हेडिंग भी कन्वर्ट सिलेक्ट किया नहीं था किया शायद है, से। टेबल कन्वर्ट नहीं किया है, टेबल डेटा फॉर्मेटिंग, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए हम, मैंने क्या किया, दिस बार आई इग्नोर्ड द, ये जो ऊपर वाला है ना हेडिंग, उसे इग्नोर करके सिलेक्ट कर दिया, प्रेस ओके, तो आपको आंसर आ रहा है। और हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, जब भी आप VLOOKUP यूज करते हो तो पहले सोर्स जो टेबल होता है इसको टेबल फॉर्मेट में करना है, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू, फॉर्मूला जब अप्लाई करते हो तब। ओके, ठीक है, ये देखिए, so you can check E107, E107, yeah, understood। ओके तो सर। ऐसे हम अप्लाई करते हैं। तो इससे पहले बेटर प्रैक्टिस कि आप पूरा टेबल को फॉर्मेट करना है, डेटा फॉर्मेटिंग स्टेप कंप्लीट करना है, एंड देन यू कैन यूज अ VLOOKUP, इससे सर, आपको प्रॉपर VLOOKUP हो जाएगा। यस, बोलिए। कार का जो डेटा सेट है ना, उसमें कुछ ब्लैंक वैल्यूज है, कॉलम है। यस, सो हाँ, तो उसे फिल कैसे करें? ओके, तो फॉर अभी के लिए, फॉर योर एक्सेल प्रोजेक्ट, यू कैन रिमूव दोज ब्लैंक वैल्यूज, ब्लैंक वैल्यूज आप डिलीट कर सकते हैं। बट हाँ, जब हम डिलीट किया तो पाइथन, फिर वो पूरा डेटा डिलीट हो जाता है ना। ओके, एक्चुअली वो असाइनमेंट आपके लिए क्या था ना, जब आप पाइथन पढ़ेंगे, पाइथन हम्म, में हम डेटा क्लीनिंग हमने सीखा था, तो उसमें डायरेक्टली फंक्शंस आते हैं कि अच्छा, हाउ टू फिल द वैल्यूज, तो उसका एक स्ट्रैटेजी है, मीन से फिल करना है, मीडियन से फिल करना है, एवरेज से फिल करना है, इसके लिए। बट क्योंकि आपको एक्सेल में करना है, ओके, तो सेम फंक्शनैलिटी, हाउ यू कैन डू इट, लेट मी शो यू। सर फ्लैश फिल जो रहता है ना, हाँ हाँ कंट्रोल E, तो हाँ हाँ, उससे वैल्यू चेंज होती है। यस, आपको फिल कैसे करना है, मैं एक शॉर्टकट आपको मतलब दिखा मुझे सकता वो हूँ अभी। डिलीट नहीं करना है, मुझे वहां पे वैल्यू चाहिए, ऐसा। यस, हाँ, यस, ओके, ये देखिए, अभी मान लीजिए इसका मैंने सैलरी रिमूव कर दिया, ये 2 सैलरी ब्लैंक कर दिया यहाँ पे, और हम्म, आपको ये फिल करना है, किससे फिल करना है बताइए। किससे फिल करना मतलब? मतलब यहाँ पे क्या लिखूं, 0 लिख दूं, चलेगा? हाँ, नहीं नहीं, ओके, वही तो मैंने आपको पूछा ना कि यहाँ पे क्या फिल करें फिर, क्योंकि वो जो डेटा है वहाँ पे प्राइस मिसिंग है, ठीक है, हम्म तो मुझे तो पता नहीं कि क्या प्राइस है, हम्म, तो वो कैसे फिल करूँ? ओके, जनरली डेटा क्लीनिंग के स्ट्रैटेजीज होते हैं, मैं आपको हम्म, शॉर्ट में बताता हूँ। पहले तो मीन वैल्यू भरना होता है,
ओके। हम्म मतलब जितना भी डेटा है इसका एवरेज निकालिए और उस एवरेज को इसके अंदर भरना होता है। ये एक स्ट्रैटेजी हुआ। ओके। हम्म सेकंड स्ट्रैटेजी क्या होता है कि जो ऊपर लिखा है 1 लाख उसे नीचे यूज करना है। हाँ ये एक स्ट्रैटेजी हुआ। मतलब यहाँ पे 76 लिखा है तो यहाँ पे भी 76 ऐसे आएगा। नहीं तो जो नीचे लिखा है 96 वो ऊपर आएगा, और 80 नीचे लिखा है तो वो 80 ऊपर आएगा, कॉपी होगा डायरेक्ट। तो ऐसे 3 स्ट्रैटेजीज है। ओके। ये तीनों, इसमें से एवरेज का बहुत ज्यादा यूज होता है। बाकी फॉरवर्ड फिल और बैकवर्ड फिल ऑप्शंस भी अवेलेबल है। डिपेंडिंग अपॉन आपकी एक्यूरेसी डेटा क्या है उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो जनरली पीपल फिल विद द एवरेज। तो अभी अब मुझे बताइए एवरेज क्या आएगा। लेट मी सिलेक्ट दिस। ये देखिए एवरेज दिख रहा है नीचे। 93। हाँ, तो जनरली वी शुड फिल इट एज अ 93। फिर भी 93 फिल करने से पहले आपको क्या करना है, राइट क्लिक, सिलेक्ट ऑल की जगह यहाँ पे ब्लैंक सिलेक्ट करना है। क्योंकि हम्म हमारे केस में तो 2 है, बट आपके केस में बहुत ज्यादा है। तो हम्म सिलेक्ट ब्लैंक, प्रेस ओके, आ गए। यहाँ पे भर दीजिए 93। फिर भी मुझे समझ नहीं आया सर कि प्राइस कैसे मैं एवरेज डालूं ना। देखिए कैसा होता है ना कि आप फर्स्ट, इसलिए मैंने बोला कि आपको डिलीट करने के लिए, बिकॉज इट डज नॉट मेक अ लॉजिकल सेंस। क्योंकि किसी गाड़ी का प्राइस हमें पता नहीं, कि एवरेज हो सकता है बट मे नॉट बी द ट्रू। बट जनरली क्या होता है ना, डेटा साइंस, और जब भी आप आगे सीखते हो थोड़ा, अभी से जो आगे सीखोगे डेटा साइंस में, तो डेटा साइंस की तरफ जब भी हम कुछ यूज करते हैं, प्रिडिक्शन हो जाए, फोरकास्टिंग हो जाए, कुछ ग्राफ बनाना है आपको, तो जनरली पता नहीं, तो इसीलिए वो डिलीट करने से अच्छा है कि आई शुड फिल इट विद द एवरेज। ओके। एक एस्टिमेशन लगाया जाता है, जो भी ब्लैंक वैल्यू है बाय एंड लार्ज एवरेज होंगे, ऐसा एक एस्टिमेशन लगाया जाता है। इससे क्या होगा कि आपका डेटा डिलीट भी नहीं होगा और ज्यादा एरर भी नहीं होगा उसमें, क्योंकि वो एवरेज के पास है ऐसे। बट इम्प्लॉय की आपने प्राइस तो चेंज हो जाएगी ना। वही सॉरी, यस, क्या आपने है वो कार नॉर्मल की। डिस्ट्रीब्यूशन पता है आपको। ये हाँ। कोई भी डेटा रहता है तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ये अजम्पशन है। तो इसीलिए हम कभी भी फिल करते हैं तो ये एवरेज वैल्यू से फिल करते हैं ऐसा। हाँ। भले ही उसका रीजन अलग हो, मान आप बोलोगे सर यहाँ पे BMW है और आपने यहाँ पे 90,000 फिल कर दिया, इट्स हम्म इम्पॉसिबल। BMW 90,000 का कभी नहीं रहता, राइट। नहीं। बट आपको प्राइस पता है BMW का, नहीं पता है। एक तो दो ही ऑप्शन है, एक तो डिलीट कर दीजिए, नहीं तो फिल इट विद द एवरेज। वो मे भी यहाँ पे हो सकता है BMW का प्राइस, राइट, बहुत ज्यादा, बट स्टिल हमारे पास डेटा नहीं है तो इसलिए हमने इससे फिल किया है, सो दैट इतना ही एरर आ जाए। आप पूरा डिलीट करोगे तो इट विल क्रिएट अ कंप्लीट एरर, मतलब पूरा एरर चला जाएगा रिकॉर्ड में। तो इसीलिए इट इज फिल्ड विद द एवरेज। ओके। एक और उसमें ना स्ट्रैटेजी रहता है सेम उसका। प्राइस है, मतलब लाइक BMW का बताती हूँ, BMW और उसका एस कुछ मॉडल वगैरह है, ठीक है। तो उसका प्राइस समथिंग कुछ है, तो सेम मॉडल नीचे भी है पर उसका प्राइस तो मैं ऐसे टाइप करके डाल सकती हूँ क्या? हाँ, आपको मतलब सेम है तो डेफिनेटली यू कैन टाइप। ओके, सेम है तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। आप फिल्टर लगाइए नेम के ऊपर और मॉडल के ऊपर, सेम है तो आप कॉपी करके फिल कर सकते हैं। और जनरली रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, वो मिसिंग हो सकता है, किसी ने हम्म जानबूझ के नहीं डाला होगा, किसी ने गलती से डिलीट कर दिया होगा, ऐसे भी हो सकते हैं ना केसेस। तो उस केसेस के बारे में मैं आपको बता रहा था। सेम है सबको तो आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कुछ इशू नहीं। नहीं तो एवरेज डाल सकते हैं ब्लैंक की जगह। यस, मोस्ट सेफ ऑप्शन इज द एवरेज। अभी तो रिमूव कर दूं ना इट्स योर ब्लैंक? कॉल, मतलब अभी के लिए रिमूव कर सकते हैं, बट मैंने आपको ऑलरेडी जैसे बताया कि हम्म एवरेज इज द मोस्ट प्रिफर्ड वे। डिलीट करने से क्या होता है, बाकी का भी डेटा डिलीट होता है, मतलब कार का नेम, मॉडल नंबर, कलर, ये सारे ऑप्शंस।
तो फिर जितने भी ब्लैंक्स रो है, राइट, तो वहां पे मैं जो एवरेज आएगा वही फिल कर दूं? यस। ठीक है। ओके ओके देन क्विकली लेट मी शो यू कि रिपोर्ट कैसे बनाना है, क्या करना है और आपको क्या सबमिट करना है। द ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इस फाइल, इस पूरे इसका, सॉरी क्लास, ये पूरे फोल्डर का लिंक दिया है। ओके, डेटा सेट्स भी है और यहाँ पे प्रोजेक्ट फोल्डर दिख रहा है, तो इस पे क्लिक कीजिए। आई ऑलरेडी शेयर्ड 2 डेटा सेट्स, यहाँ पे 2 डेटा सेट्स है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट डेटा सेट में क्या है, आपको वी लुकअप वगैरह यूज करना है। इसमें आपको नल वैल्यू, ब्लैंक वैल्यू को फिल करना है, जैसे अभी मैम ने बताया। तो वो ऑप्शंस 2 यहाँ पे है। बेस्ड ऑन दीज 2 कंडीशन आप कोई भी एक चूज करो जो आपको सुटेबल लगे। ओके, देन कंप्लीट करना है प्रोजेक्ट। इसमें कंप्लीट मतलब क्या, डेटा अंडरस्टैंडिंग करना है, फॉर्मेटिंग करना है, क्विक इनसाइट्स निकालना है। देन कंसोलिडेशन इसमें लगेगा, इसमें नहीं है कंसोलिडेशन। बाय द वे इसमें कंसोलिडेशन लगेगा मतलब ऐसा नहीं, ये देखिए ये नीचे दिख रहा है, ये मैंने क्रिएट किया है। इफ यू डोंट नो, बट आपका काम है कि ये तीनों को क्रिएट करना, नहीं तो सब लोग यही यूज करते हैं। ये नहीं है, ये मैंने क्रिएट करके दिया आप लोगों को। सो डोंट यूज दिस। आपको नहीं आ रहा है तो यूज कर सकते हैं, बट आई वांट यू टू यूज दीज 3। ये तीनों को कंबाइन करना है। आप बाकी आप देख लो फिर, लुकअप वैल्यू क्या होगा, कॉमन कॉलम क्या होगा, कितने दूर है, कैसे कंबाइन करना है। होप दैट इज क्लियर। ओके, तो फिर ये हो गया कंसोलिडेशन। समराइजेशन तो दोनों में करना पड़ेगा, पिवट लगा के चार्ट बनाना है आपको, राइट। ऑटोमेशन नहीं किया तो भी चलेगा, इट्स नॉट दैट इमीडिएट रिक्वायरमेंट। सब होने के बाद आपको फिर ऐसा रिपोर्ट बनाना है। ये देखिए दिख रहा है, लेट मी लोड, वो लोड हो रहा है सब कुछ। ओके, ये रिपोर्ट है। इस आई गेस ये अच्छा से नहीं दिख रहा है, बट आपके इसमें दिखेगा, यहाँ पे एक डिजाइन वगैरह है ऐसे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्ट किस बारे में है, क्या डेटा सेट में क्या दिया है और आपको क्या इनपुट देना है। दिस इज अ बिजनेस रिलेटेड विद यूज्ड कार वगैरह ऐसा कुछ आप लिख सकते हो। और दिस इज अ बिजनेस ऑफ ग्रोसरीज एंड रिटेल प्रोडक्ट्स, जो भी आपका इंट्रोडक्शन है। देन इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा सेट, ये हेडिंग ऐसा ही रहना है, हेडिंग में चेंज मत करो। इसके नीचे सब कुछ भरो, आपको ऐड करना है, नया हेडिंग बनाना है तो बनाओ, बट दिस शुड बी देयर। इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा सेट, डेटा सेट में कितने कॉलम है, क्या है, ये लिखो। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल 4 लिखा है। डोंट एवर कॉपी पेस्ट माय डेटा। आपके जितने भी कॉलम्स है वो सारे कॉलम आने चाहिए और सारे का यहाँ पे इंफॉर्मेशन होना चाहिए। किसी ने ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया, आई विल रिजेक्ट स्ट्रेट अवे। बहुत बार मैंने देखा इसी रिपोर्ट को उठा के 2-4 कुछ चार्ट कॉपी करो और फिर सबमिट करते, सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, क्लियर, समझ में आया इसमें क्या फिल करना है। इंफॉर्मेशन देना है, आपके कितने कॉलम्स है, उस कॉलम का क्या डिटेल्स है उसमें। ओके, ठीक है। देन डेटा प्रिपरेशन, डेटा प्रिपरेशन में क्या आएगा, ब्लैंक वैल्यू निकाल रहे तो ब्लैंक निकालना है, निकाल के फिल कर रहे एवरेज तो वो लिखना है। नहीं तो डेटा कंसोलिडेशन, वी लुकअप लगा रहे हो तो वी लुकअप लगा के दिखाइए। वहां पे लिखिए कि ये 3 कॉलम अलग अलग थे, मैंने ये लुकअप वैल्यू किया, ये ऐसे कंबाइन करके एक नया शीट बनाया, राइट। डेटा प्रिपरेशन, हाँ बोलिए। ओके, क्लियर, डेटा प्रिपरेशन क्लियर, इंफॉर्मेशन क्लियर। देन डेटा क्लीनिंग, आपने कुछ क्लीनिंग किया है। डेटा क्लीनिंग इज नथिंग बट हमने जो सीखा है डेटा फॉर्मेटिंग, वो है। ब्लैंक है, कुछ नल वैल्यू है, कुछ रिमूव करना है तो आप इसमें लिख सकते हो। कन्वर्ट किया है डेटा टाइप, वो लिख सकते हो। ओके, कुछ कॉलम आपको नहीं चाहिए एनालिसिस के लिए तो वो लिख सकते हो, सच एज पिन कोड। पिन कोड का यूज करके आप क्या इंसाइट निकालोगे, तो इससे अच्छा वो डिलीट करो। रो आईडी यूज करके क्या इंसाइट निकालोगे, इससे अच्छा वो डिलीट करो। लाइक दिस आपको यहाँ पे डेटा क्लीनिंग भरना है। ओके, देन क्विक इंसाइट्स, डेफिनेटली
फिल्टर, सॉर्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के जो भी आप इनसाइट निकालोगे इसमें लिख दीजिए। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 2-3 इनसाइट्स, ये ऐसे। ओके, क्विक इनसाइट्स के बाद कंसोलिडेशन आपने किया ही है ऊपर, देन समराइजेशन। तो समराइजेशन में ऐसे अलग अलग आपको खुद से बनाना है पिवट टेबल, उसका चार्ट बनाना है, एंड यहाँ पे इनसाइट लिखना है। वो पिवट चार्ट और पिवट टेबल का यूज करके आपने क्या इनसाइट निकाला वो लिखना है, राइट? सर ये टेबल यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं ना, वहाँ पे कॉपी करके? हाँ, यही ओके, तो किया है मैंने, देखिए यस दिस यस। इज अ पिवट टेबल ओनली। तो ये ऐसे इंसाइट्स निकालना है, अंडरस्टूड? कैसे इंसाइट्स आने चाहिए। सबसे बाद आखिरी वाला स्टेप रहेगा एक्शंस। क्या आप सजेस्ट करोगे बिजनेसेस को, क्या आपने ऑब्जर्व किया, एक्शंस एंड इंसाइट्स, राइट? सॉरी, इंसाइट्स एंड एक्शंस। इंसाइट्स आपने यहाँ दिया है, एक्शंस आपको देना है। ओके, एक्शंस एक 3-4 एक्शंस रहेंगे तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट कम अप विथ 8 to 10 insights. क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? सो दिस इज अ फॉर्मेट। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है, ये 2 ईमेल आईडी दिया है मैंने, इस पे आप प्रोजेक्ट सबमिट करना है। और डेडलाइन 10 डेज का है, 6 तारीख है, 16 तारीख तक आप सबमिट कर दीजिए। ओके, एक आपको मिनट नया। स्क्रॉल डाउन करो ना प्लीज, ओके सर। और नीचे और नीचे और ऊपर ऊपर। हाँ, इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा। हम्म, तो इसमें जो देखो कॉलम में अभी मैंने प्रोजेक्ट डेटा मिनी प्रोजेक्ट ओपन किया है मैंने। हाँ हाँ उसमें रीजन, मार्केट, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, वो सब यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा ना उसका? हाँ, यही बताया ना मैंने यस, ओके कि आपको सारे कॉलम्स का यहाँ पे डिटेल में लिखना है। ओके ओके। ओके, आपको फॉर्मेट कुछ दूसरा यूज करना है, डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, बट ये सारे हेडिंग मेंटेन कीजिए। ओके, मतलब ये सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए उसमें, दैट्स इट। बाकी फॉर्मेट, नया टेम्पलेट, जो भी आपको यूज करना है कन्वीनियंटली आप यूज कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम सर आया मैं तो मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा सर। ओके। सर मैंने ना एक ट्राई किया था, हम्म। तो आपको दिखाओ। ओके, आप अभी प्रेजेंट कर सकते हैं इफ यू वांट, बट सर आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ हाँ, बोलिए। सर जो आजकल लिया आपने माइक्रोस का, मेरा मतलब मेरी जो प्रीवियस कंपनी में मैं कर रहा था माइक्रोस वो टाइम पे, हम्म। तो कुछ माइक्रोस रन होते थे और कुछ माइक्रोस रन नहीं होते थे बिकॉज ऑफ बिग डेटा डेटा के हिसाब से। तो उसमें कुछ वो कुछ वो एरर आते थे, वो किस एरर के होता था? डिपेंड करेगा, वो प्रोग्राम आगे बढ़ के कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना। वीबीए का जो प्रोग्राम रहता है ना, आप जितना मैक्रोज कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे उतना वो प्रोग्रामिंग रहता है। और उस प्रोग्रामिंग के अलग अलग सेटिंग्स वगैरह रहते हैं, उसमें क्या क्या आपने कुछ चेंज किया, जाके कुछ थोड़ा इधर उधर भी चेंज किया मैक्रोज का, जो वीबीए का प्रोग्राम है, तो पूरा मैक्रो रन नहीं होता, हाफ करप्ट हो बिकॉज जाता है। बिकॉज बिकॉज हम जो डेटा देते थे हम टेक्निकल टीम को हमारे, तो हम हम्म उनको ये इनसाइट बता देते थे और हम्म वो रन करते थे। बट ट्रायल हम्म होने के बाद वो हमें भेजते थे, और जब हम ट्राई करते थे 2-3 शीट में वो अच्छे से जाता। जब नई हम्म शीट आती क्लाइंट्स की हम्म तरफ से, तो फिर हाँ से वो हाँ एरर बताता। हम्म। वो क्या है ना कि जनरली हम जो ये मैक्रोज ऑप्शन है, दिस हम्म इज अ सिंपल टूल, हम्म एक कैजुअल वर्क के लिए है। आप हम्म इसमें प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते। प्रोडक्शन यूज करना है तो आपको थोड़ा वीबीए का बैकग्राउंड चाहिए। आप क्या कर रहे हो, कॉपी पेस्ट ही कर रहे हो ना, किसी ने कोड बनाया है और वो आप किसी जगह पे यूज कर रहे हो। दिस डज नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। कॉपी पेस्ट बहुत कम बार आपको सक्सेस देगा, ऐसे रहता है। जहां तक चल रहा है चल रहा है। आपको प्रॉपर कोड बनाना है तो वीबीए सीखो, डेवलप करो। बाय द वे, वीबीए डेवलपर्स के भी बड़े बड़े प्रोफाइल्स रहते हैं, दे विल क्लियर एंड टू एंड मैक्रो और एंड टू एंड प्रोग्राम।
ऐसे एंड मेरा सेकंड क्वेश्चन है सर, वो जो मैं ट्राई कर रहा था डेटा टेबल्स का, तो उसमें कुछ एरर आ रहा है, तो आफ्टर शीटर मेरा भी एक, मुझे भी एक शेयर करना है, तो वहाँ पे एक ठीक है करा दीजिए। चलेगा ओके चलो क्विकली who want to present शीतल या Okay.